So is the screen visible to you all? Has the recording been initiated? Okay. So if I have a class, let's say the class which we have been using from day one in Java. Let's say I have a student class. Okay. I copy this and paste it in my package. So I have a copy of this class which has roll number, name, percentage, strength, getters, setters. Okay. तो थोड़ा screen zoom कर दीजिए, क्या हुआ? screen थोड़ा zoom कर दीजिए. ओके, स्क्रीन जूम करना, कंट्रोल प्लस. ओके. So roll number, name, percentage. I'll remove all this and I'll add the getter setters properly. So source, generate, setter, getters for all of them, and then accept display. Display के लिए better है क्या? I would go for to string. Generate to string. It generates the to string. Okay? Display strength आपको करना है तो okay. ये एक static variable है. Okay. I'll remove the static variable. I just don't want to mess around with anything else. Okay. And क्या हो गया अभी? Getters का variation. Okay, simple, short and sweet class. Can roll number, name, percentage as a constructor. Let's put a constructor. So generate, and whenever you put a constructor, the parameterized, make a habit of writing a empty. Okay, make sense? Okay, now if I want to store the objects of this class in my collection, if I want to store the objects of this class in my collection. So now I make an array list of students, array list of students. So I go to my, I'll make a new package, new class, array list of students dem. Okay, and we have the main method over here. So I make a student object, student s1 is new student, and what do I need to pass to it? Roll number, name, and percentage, and I make two more students. And I make 40. S2 and S3. Now I make an array list of students, right? Call them as students is new array list. Correct? Control Shift O. And now in this students, I add S1, I add S2, and I add S3. Okay? Yes or no? If I do not override the toString function, if I do not override the toString function and I try to display this,
ArrayList. Okay, so I try to display them. You will just see the hash code of these objects. You will not see the actual objects. Okay, object 1, object 2, and object 3, because there is no mechanism of converting object to string. So if I uncomment the toString and then I run the same code, you will see that it shows student list. List means, right, list, the first student, second student, and third student in the order in which they were inserted. Now, can you display me the name of student number 2, the second student? Display name of student added second. Who was added second? S2. What is S2's name? How will we do that? बोलो भाई. तो स्टूडेंट्स जो मेरा लिस्ट है उस पर गेट लगाऊंगा. गेट कौन से इंडेक्स वाला? 1 इंडेक्स ना. तो मुझे मिल जाएगा ये ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट उसका क्या दिखाना है मुझे? डॉट गेट आ गया. ओके, डिस्प्ले मी नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स. तो अभी how many students do I have? So I'll do a for loop, the traditional for loop. Start the 0, go till students dot size and I plus plus, and then what to do? This out students dot get of I, the first get of 0, and सबका क्या दिखाना है मुझे? सबके नाम दिखाने हैं. Will show me all the names. Correct? Okay. अब जो है इसमें और क्या चीजें हम लोग डाल सकते हैं? ओके, हाँ, अब थोड़ा सा एडवांस जाते हैं. ठीक है, कि ये एक स्टूडेंट्स मैंने लेट से मैंने रेस रखी है 100 मीटर की रेस. क्या रखी है मैंने? M 100 मीटर. तो मैं फर्स्ट कौन आया उसमें? फर्स्ट कौन आया? हाँ भाई, विराट. सेकंड कौन आया? और थर्ड कौन आया? ऐसे एक और रेस हुई 200 मीटर की. अब उसमें ये लोग आए 33, हार्दिक और शुभमन गिल नंबर. हाँ, ओके, 44 है क्या? और ये 17 है ना ऋषभ? ठीक है, कोई भी नाम दे दो इनको. 67, 73 और 69. ठीक है, और ये कौन हो गया अभी? 4, 5 और अभी M 200 में किसको ऐड कर रहा हूँ? S4, 5 और. तो अगर मैं डिस्प्ले करूँ अभी M 100 ऐड होने के बाद क्या डिस्प्ले करूँ मैं?
100 मीटर वाली है। अभी मैं दिखाऊँ M200 में, सही है, बाकी वो छोड़ दें। सेव एंड रन। तो 100 मीटर वाले हैं, 200 मीटर वाले हैं, ठीक है। अब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ एक लिस्ट में। ओलंपिक लिस्ट क्या बनाया मैंने? ओलंपिक इज न्यू एरे लिस्ट। ओलंपिक में क्या ऐड करने वाला हूँ? किसको? इन दोनों को ना। तो जो ऐड करूंगा ओलंपिक में वो किस टाइप का होगा? लिस्ट ऑफ समझ में आ रहा है? यस, नो, मे बी। एंड व्हाट डू आई राइट? ओलंपिक डॉट ऐड क्या? M100 और ओलंपिक डॉट ऐड क्या? M200, correct? And now if I sys out Olympic, तो क्या आंसर आएगा? लिस्ट ऑफ लिस्ट। कॉपी कर लो इसको, नोटपैड प्लस प्लस पे इसको उठा के देख लो, तो बारीक रहेगा। देखो, तो ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है, तो ये भी एक लिस्ट है, ठीक है। इसमें क्या है? स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट के दो ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट के तीन ऑब्जेक्ट है, और ये लिस्ट कंप्लीट हो गई। वापस स्टूडेंट के एक लिस्ट शुरू हो रही है, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट का दो ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट के तीन ऑब्जेक्ट। लिस्ट कंप्लीट and this list completes. What is this? A list of students, correct? Now using Olympic, can you display me the name of the student who has come first in 100 meters? Olympic यूज करके बताओ। ओलंपिक, ये ओलंपिक है ना, कौन आया 100 मीटर में फर्स्ट? कैसे करेंगे? ओलंपिक डॉट गेट ऑफ 0, तो ये मिल जाएगा। उसका गेट ऑफ 0, ये मिल जाएगा। उसका क्या चाहिए? नहीं, तो कैसे करेंगे? विराट डिस्प्ले करने के लिए बोलो, ओलंपिक डॉट गेट ऑफ 0, तो क्या मिल गया? ये मिल गया। इसमें से फिर गेट ऑफ 0 मतलब, तो वापस गेट ऑफ 0, ये ऑब्जेक्ट मिल गया। इसका क्या चाहिए अभी? डॉट गेट। अब डायरेक्टली ये ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्लास का मिला मुझे, तो मैंने नेम निकाल दिया। सेव एंड रन, और विराट आ जाएगा, आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर ये नहीं बताता कि ये लिस्ट जो है वो स्टूडेंट की है, तो बोलता कि भाई एक सादी एरे लिस्ट है या एरे लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। इसकी एरे लिस्ट है, ऑब्जेक्ट है। ये भी एरे लिस्ट किसकी है? ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है? लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता। अब यहाँ बोम क्यों मार रहा है ये? तो अगर आपने जेनरिक बता दिया तो आपको करना पड़ेगा टाइप का। क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर ये गारंटेड है कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट देगा। ये मेथड किसका है? स्टूडेंट क्लास का है। अब ये ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्लास का हो सकता है कि हमेशा, गारंटी है क्या? तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? ये जो भी लिया है, क्या करना पड़ेगा इसको? टाइप कास्ट। टाइप कास्ट में कर्ली ब्रैकेट में क्या आता है? डेटा टाइप, क्या ऑब्जेक्ट। अगर मुझे एक डबल डी इक्वल टू 10.0 है, इसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इंटीजर एन में, तो क्या होगा? डबल ब्रैकेट में आएगा ना, टाइप ब्रैकेट में आएगा ना। कन्वर्ट दिस डी इनटू एन इंटीजर, है ना। व्हाट कम्स इन द ब्रैकेट? यस सर।
मेरा सवाल ये है कि ये टाइप टाइप आएगा ब्रैकेट में कि ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में आएगा? टाइप ब्रैकेट में आएगा ना, हाँ वही वही पूछ रहा हूँ। तो क्या करेंगे हम लोग, ये हमको क्या दे रहा है यहाँ, ये क्या दे रहा है अपने को? एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे फिर अभी स्टूडेंट क्लास में टाइप कास्ट करेंगे। अब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब उस पर गेट नेम लगाएंगे। ये इतना लेंदी हो जाता, कॉम्प्लिकेटेड। समझ में आ रहा है? तो क्या करा उसने, ओलंपिक से गेट ऑफ जीरो डॉट गेट ऑफ जीरो ले लिया, उसको करा कन्वर्ट स्टूडेंट में। अब ये पूरे के ऊपर अपने को मेथड लगाना है एक डॉट गेट नेम, तो ये भी सेम काम करेगा, ये भी विराट दे देंगे। But why to go so long? That's why we always, whenever you are using collection, we'll always say कि ये इस टाइप के ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा। तो जब ये मुझे मालूम पड़ जाएगा कि ये स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा है, तो फिर मुझे इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी टाइप कास्टिंग। तो मैं डायरेक्टली ओलंपिक से गेट ऑफ जीरो, यानी पहला M100, उसमें गेट ऑफ जीरो पहला ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली उसका फंक्शन दिख जाएगा मुझे गेट। अगर मैं अलग तरीके से करता हूँ उस पुराने तरीके से, जिसमें टाइप क्या होता है उसका, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब जब मैं करूँगा गेट ऑफ जीरो डॉट गेट ऑफ जीरो डॉट गेट ऑफ जीरो, अब इसके ऊपर हमें स्टूडेंट क्लास के फंक्शन चलेंगे नहीं, क्योंकि इस पर चलेंगे ऑब्जेक्ट क्लास के फंक्शन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट किसका है, ऑब्जेक्ट का है ना, स्टूडेंट का तो नहीं है। तो किसकी मेथड दिखा रहा है वो, ऑब्जेक्ट जिस टाइप का आपने बनाया। अरे आ रहा है समझ में क्या एग्जैक्टली डिफरेंस होता है व्हेन यू make the collection and you give the type of the data while creation itself, so saves you from a lot of pain. क्या हो गया? ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स तो 2 डायमेंशन में भी जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अप टू यू हाउ वेल यू नो योर डेटा। so this is how Java represents the data. So this is only Java specific data. This is what Java. Then we have JSON also. What we have? JSON. JSON में लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट की होती है, ऑब्जेक्ट होता है पैरेंथेसिस में। ये JSON का नोटेशन है। किसका नोटेशन है? और JSON में की वैल्यू पेयर होता है। क्या होता है? की वैल्यू पेयर। तो हर ऑब्जेक्ट, तो ये लिस्ट है, ऑब्जेक्ट किसमें दिखाएगा JSON में? JSON में ऑब्जेक्ट किसमें आता है? कर्ली ब्रैकेट में। और लिस्ट किसमें आती है? स्क्वायर ब्रैकेट। और JSON के हर एक उसमें की वैल्यू होता है। तो यहाँ पर इसका आपने जो स्टोर किया है ना M100, वो की बन जाता है, बीच में आता है कोलन। बीच में क्या आता है? कोल, और वैल्यू राइट में आता है, तो की कोलन वैल्यू। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? M2। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है? तो की डबल कोट्स में आता है हमेशा। तो ये जो है वो क्या है? ओलंपिक है। और ये क्या है? M100। और ये क्या है? गेटिंग? तो लाइक, हाँ अलग, तो फिर आपको टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये करने, फिर ये नहीं कर सकते। फिर आपको हर टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो आपको कुछ कुछ मत दो ना, बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट वो हेटेरोजीनियस मोड में रहता है ना, तो कुछ देने की जरूरत। ओके, so this is how an object looks like in your JSON. List looks like a
square, an object looks like a. Now again, this is also an object. So this also will be ऑब्जेक्ट है ना ये भी इसमें आएगा अभी। जेसन ये बहुत काम की यूटिलिटी है पढ़ना, क्योंकि सारा डेटा जेसन में ही आता है। ओके, और ये लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो ये लिस्ट लिस्ट ही रहेगी। क्या रहेगी ये? लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ना, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट ही बनेगा, ये भी क्या बनेगा? लिस्ट ही बनेगा। ऑब्जेक्ट्स ये बन जाएंगे, लिस्ट एंड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। ये लिस्ट है। हाँ हाँ, लिस्ट है ना, उसमें लिस्ट क्या है? तो लिस्ट क्या है उसमें? ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या है? लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या है? लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड ये लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं समझा? ये ऑब्जेक्ट है ना एक एक, और ये ऑब्जेक्ट की लिस्ट हो गई। तो व्हाट इज M100? लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं, वो की है। हाँ, लिस्ट ऑफ लिस्ट लिस्ट की वैल्यू है वो।